been introduced, and basically I am a teacher and I taught psychology for about 40 years, and few students, they know who are sitting here. You all have the syllabus, so I think today I will be taking the unit 3. So certain things I would like you all to note down कि इस यूनिट 3 में आपको क्या क्या करना है और क्या क्या मैं आप लोगों को बताएं. I think it is bilingual is better. Some of you must be Hindi medium students and some of you must be English medium students. So I will try to explain each and everything within the time which I have been allotted. और अगर आप लोग को लगता है कि कहीं भी कोई चीज़ आपको नहीं क्लियर है, जैसा कि मैम ने बताया, you can just note it down or put a tick mark on that particular topic and then we can discuss it. You can tell me if there's time today, we can discuss it, or a certain day after tomorrow. So the schedule which has been given to me was 3 days, but due to some important work, tomorrow I won't be able to take your class. But day after tomorrow I will be continuing about the review and literature. And if something is left, we can always complete it afterwards. You all are learned scholars pursuing for your PhD program. That is a very important program, and you must have gone through certain chapters. What I am expecting, what is a research, types of research, what are variables, ये सब आप लोगों ने पढ़ लिया होगा. ये आपका थर्ड यूनिट है और थर्ड यूनिट में है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, साहित्य की समीक्षा, जिसमें आज का जो टॉपिक है that is need and significance of reviewing the literature. This is the topic which I'll try to cover it so that the maximum inputs I can give you. Need and significance of reviewing इसका महत्व क्या है, हम क्यों साहित्य की समीक्षा करते हैं. तो पहली चीज जो इम्पोर्टेंट है दैट इज नीड, कि इसकी आवश्यकता क्यों है, कि आपके सिलेबस में दिया है. दूसरी चीज है लिटरेचर सर्च प्रोसीजर, that I will be covering day after tomorrow. कि हम कैसे साहित्य का पता लगाते हैं, कैसे इसको ढूंढते हैं, हमारे सोर्सेस क्या क्या हैं, स्रोत क्या क्या हैं, प्राथमिक स्रोत कौन से हैं, द्वितीय कौन से हैं, तृतीय कौन से हैं, प्राइमरी या आपके सेकेंडरी सोर्सेस, there are many sources. How you have to collect the literature which is important for your research work. This is very important. At times what happens कि आप इतना ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा कर लेते हैं जिसका कोई भी प्रयोग आपके रिसर्च या अनुसंधान में उपयोगी नहीं होता. तो you have to be very careful कि हमें क्या टॉपिक है, उस टॉपिक या उस सब्जेक्ट या उस फील्ड से रिलेटेड ही हमको साहित्य का अवलोकन करना है और उसके बाद उसको कलेक्ट करना है और कलेक्ट करने के बाद उसकी समीक्षा करनी है. और तीसरी चीज है आपके क्या क्या सोर्सेज होंगे, और हम फिर जब रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो गया तो हम उसको कैसे लिखते हैं, हाउ डू वी राइट इन अ रिसर्च प्रपोजल. देयर आर टू थिंग्स. रिव्यू आर्टिकल होता है एंड रिव्यूइंग लिटरेचर होता है. रिव्यू आर्टिकल यू राइट एंड पब्लिश इन अ पेपर. यहां पे दिस इज डिफरेंट. This is for
प्रपोजल आप किस तरीके से साहित्य का अवलोकन करेंगे, साहित्य की समीक्षा करेंगे, ताकि आपको वो प्रश्न मिल जाए जिस प्रश्न का हल आप ढूंढना चाहते हैं। बेसिक जो प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल के लिए जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है, that procedure we are going to. So don't confuse, they are two different things. You're not writing a review article over here. Of course you can write it afterwards for your research, for publication. But here we are going to discuss about what is review, what is literature, what are the sources of literature, why it is required in a research proposal, why do you write as a chapter in your research, why it is important. That is what we are going to discuss. So can any one of you tell me what do you mean basically, generally when the term comes review, समीक्षा, तो सबसे पहला चीज आपके दिमाग में क्या आता है? समीक्षा करना किसी चीज की, कोई तथ्य है, कोई फैक्ट है, कोई पीस ऑफ नॉलेज है, उसकी समीक्षा करनी है। What do you mean by review? To search something with an inquisitive viewpoint. To search something With an inquisitive viewpoint. inquisitive. You have some curiosity. Next. Anyone? समीक्षा। मैम, viewing something profoundly, मतलब उसको बहुत गहरे तरीके से। Very good. Profound. This is a very good word. Profoundly का मतलब होता है गहन। आप किसी चीज का गहन अध्ययन, डीपली यू आर स्टडिंग अबाउट दैट बॉडी ऑफ नॉलेज। एंड लिटरेचर क्या है, साहित्य क्या है? इट इज द स्टोर हाउस, यू कैन से, ऑफ नॉलेज। बहुत लोग काम करते हैं, बहुत लोगों ने रिसर्च करी है, ठीक है, अब वो बॉडी ऑफ नॉलेज में है, इट इज वास्ट। उस वास्ट बॉडी ऑफ नॉलेज से, आई थिंक, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी बिकॉज आई एम 65 years old and I am trying to keep my memory intact over here. So this much I will expect from all of you. जहां आपको नहीं समझ में आता, मैंने आपसे कहा just note it down because the moment you will talk and chat, तो मेरा ध्यान बट जाएगा and I don't want कि मेरा भी distraction हो. So that is a very good word and that is profound, but not only profound knowledge. You are reviewing का मतलब क्या हुआ? Critical appraisal, आलोचनात्मक मूल्यांकन। You can write if you want, this is important. कि जब किसी भी, कोई भी तथ्य, कोई भी पीस ऑफ नॉलेज, कोई भी आपको ज्ञान, आपने कोई भी पढ़ा या उसका केवल आपने पढ़ा नहीं उसको, इट इज नॉट ओनली रीडिंग इट, लेकिन पढ़ते समय या लिखते समय यू हैव टू बी क्रिटिकली अप्रेजल करना। सो रिव्यूइंग इज अ क्रिटिकल अप्रेजल, इट इज अ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ a paper. It can be a research paper, it can be a piece of knowledge, it can be say a book you are going through, it can be an article published in the paper, any citation. So while you are reading, while you are going through the content, जब आप उसको पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय आप क्या करेंगे? आलोचनात्मक ढंग से उसको पढ़ेंगे, पहली चीज। दूसरा कि ये जो भी आर्टिकल्स हैं या पेपर्स हैं या रेफरेंस में आपको बिब्लियोग्राफी में कोई आपको बुक दिख गई जो आपके टॉपिक या आपके विषय से संबंधित है, तो आप क्या करेंगे? जब आप रिव्यू कर रहे हैं और आप ये देख रहे हैं कि ये दिस इज, जब क्रिटिकली करेंगे तभी आप ये देख पाएंगे कि दिस पर्टिकुलर स्टडी इज इंपॉर्टेंट फॉर माय वर्क, इट विल हेल्प मी, या ये बहुत हमको हेल्प नहीं करेगी,
हमारे, चाहे वो व्याख्या करने में, चाहे वो इंट्रोडक्शन लिखने में, चाहे वो आपके मेथोडोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमको, तो उनको आप धीरे धीरे क्या करते हो, सेग्रीगेट, दैट विल आई विल टेल यू इन द प्रोसीजर, आप उनको अलग करते चले जाते हो। ये नहीं कि बार बार आपने उसको पढ़ा, बार बार आपने उसको किया। द मोमेंट यू कम अक्रॉस अ पीस ऑफ नॉलेज, आपका जो, और वैसे भी मैं आपको बता दूं, रिसर्चर के जो आई होती है, ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि यू हैव टू नॉट जस्ट देखना होता है ना, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो एक है कि मैंने ये कागज उठाया, मैंने कहा अ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ अ बुक इज कॉल्ड रिव्यू, एक तरीका ये होता है। एक होता है कि वो क्रिटिकल अप्रेजल है क्या, ये बताना। तो ये आपको समझना है कि हम जब इस तरह का अध्ययन करें तो हमारा जो ओरिएंटेशन है, हमारा जो पर्सपेक्टिव है, हमारा जो एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क है, दैट शुड बी आलोचनात्मक, that should be of a critical appraisal, and that is, it's not mere survey, it's not mere observation with a critical eye. You are not simply observing, you are not simply surveying, you are not simply evaluating. आपका जो मूल्यांकन, ये सब चीजें रिव्यू में आती हैं। You are evaluating, you are appraising, you are surveying, but with a critical note. That is very important, and that is what is lacking in most of the research. क्योंकि देखिए, review of literature पढ़ने से जब आपकी थीसिस सबमिट होती है और इवैल्यूएशन के लिए जाती है, तो review of literature tells the quality of the researcher, the investigator, कि इसने कितना गहन डेप्थ में कितना ये बच्चा गया है। वो आपके रिव्यू बता देते हैं कि आपने कौन कौन सी रिसर्चेस को एनालाइज करा, कौन कौन सी रिसर्चेस को, जो भी आप लिख रहे हैं, जो भी आप उनको कोट कर रहे हैं। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बाय कलेक्टिंग योर रिव्यूज। दूसरा, लिटरेचर, साहित्य। तो साहित्य, जैसा मैंने आपको बताया, स्टोर हाउस है नॉलेज का, वास्ट। अब उस वास्ट में से आपको सिलेक्ट करना है। सो देयर इज अ सुपरवाइजर, देयर इज अ स्टूडेंट। नाउ फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई एम अ स्टूडेंट एंड आई वांट टू डू PhD, and I go to the supervisor and I tell him or her that मैं PhD करना चाहता हूँ। तो सुपरवाइजर कहता है किस क्षेत्र में, फील्ड क्या है? तो आपने कहा साइकोलॉजी, नहीं, साइकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट, बट देयर आर मेनी फील्ड्स इन साइकोलॉजी। विच पर्टिकुलर फील्ड यू वांट टू वर्क? बिकॉज हो सकता है कि सुपरवाइजर का जो स्पेशलाइजेशन है वो किसी क्षेत्र में हो, हेल्थ साइकोलॉजी में हो, ठीक है, किसी और सुपरवाइजर का किसी सोशल साइकोलॉजी में हो, आप पहुंच गए वहां। तो यू हैव टू डिसाइड कि हमें क्लिनिकल में काम करना है, कि हमको सोशल साइकोलॉजी में काम करना है, कि हमको फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में काम करना है, कि हमको न्यूरोसाइंस में काम करना है, कि हमको कॉग्निटिव साइकोलॉजी में काम करना है। There are so many fields. तो a good student क्या करेगा? आपने देखा होगा सिलेक्शन ऑफ सुपरवाइजर में उनकी फील्ड्स दी होती है, स्पेशलाइज्ड फील्ड्स लिखी होती है, इंडस्ट्रियल, ऑर्गेनाइजेशनल, हेल्थ, एंड अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट्स। यू आर पीपल ऑफ हियर ऑफ डिफरेंट फैकल्टीज, आप लोग यहाँ पे बैठे हैं ह्यूमैनिटीज के, तो आपको सिलेक्ट करना है। नाउ नूतन बोरा कैन नॉट हेल्प यू देयर, I can only tell you कि how you will select। अब पता लगा आप करना तो हेल्थ में चाहती हैं और आपने कर लिया जाकर के ऑर्गेनाइजेशनल में, बिकॉज किसी ने कहा वो गाइड बहुत अच्छे, क्लैश हो गया यहाँ पे, और कभी भी वो फ्रूटफुल रिसर्च नहीं होगी, मैं आपको बता दूं। सो वी
कॉशियस सुपरवाइजर जो आपका है, और कई बार ऐसा होता है कि ओपन माइंड का सुपरवाइजर होता है, कहता है कोई बात नहीं, आपका ये टॉपिक है, आई विल ट्राई टू रिलेट इट। ऑर्गेनाइजेशनल मेरा क्षेत्र है तो क्या हुआ, आई विल ट्राई टू रिलेट इट विद हेल्थ, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और मैं उससे रिलेट करके आपको कोई अच्छा सा तरीका बताता हूँ कि आप कैसे अपने PhD को। देयर आर वेरी गुड सुपरवाइजर। सो द रेपुटेशन ऑफ द सुपरवाइजर डिपेंड्स अपॉन द वर्क ही हैज contributed to his field. So you have to be very particular while selecting your supervisor so that आप उसी क्षेत्र में काम कर सकें जिसमें आपकी रुचि हो, और केवल रुचि ना हो, वो प्रैक्टिकल भी हो चीजें, something which is contributing positively to the society at large। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। आपका टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो हमारे रिसर्च को जो करंट स्टेटस है उसमें कुछ बदलाव लाए, उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करे। सो दिस रिव्यूइंग ऑफ लिटरेचर विल हेल्प यू कि आप सिलेक्शन ऑफ योर टॉपिक ऑल्सो, कि ये टॉपिक जो हमने लिया है इसको हम जब तक रिसर्च प्रपोजल देते हैं उसको हम कैसे अच्छा कर लें, उसमें कैसे हम बदलाव ले आएं, उसमें कोई हम माइन्यूट चेंजेस ऐसा कर दें सो दैट इट बिकम्स मोर यूटिलिटी, उसकी ज़्यादा उपयोगिता उसकी ज़्यादा बढ़ जाए। एंड दैट इज दिस नीड ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो साहित्य में आपको जैसे ग्रंथ हैं, आपकी बुक्स हैं, आपके जर्नल्स हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं, उनको डिटेल में मैं सोर्सेज में डिस्कस करूंगी। आपकी कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग्स होती हैं, सेमिनार्स की प्रोसीडिंग्स होती हैं विच हैव बीन पब्लिश्ड, उनसे हम कई बार पब्लिश्ड होती हैं, कई बार नहीं पब्लिश्ड होती हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं, उनसे उनको हम देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, और जो रेलेवेंट होता है ना, जो प्रासंगिक होता है उसको हम अपने रिसर्च में इंक्लूड करते चले जाते हैं। सो रिव्यूइंग ऑफ लिटरेचर आई विल से इट इज द हार्ट ऑफ रिसर्च, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेग्रल पार्ट ऑफ रिसर्च, सबसे महत्वपूर्ण जो आपका हिस्सा है, क्योंकि इट हेल्प्स इन मेनी थिंग्स, और इसलिए उसकी हमारे उसमें आवश्यकता है। अब आपने एक स्पेसिफिक एरिया, विशिष्ट क्षेत्र चुना रिसर्च के वर्क के लिए। अभी आप लोगों ने चुना तो नहीं होगा ना, ये चुन लिया है। अभी तो आपने सुपरवाइजर्स अपने अपने सिलेक्ट करे होंगे कि नहीं? ब्रॉड एरिया, ब्रॉड एरिया, वेरी गुड। सो तो ब्रॉड से आप धीरे 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 नैरो होते चले जाएंगे। तो अभी आपने एक ब्रॉड एरिया लिया है। ब्रॉड एरिया या जनरल बॉडी ऑफ नॉलेज, जो पर्टिकुलर एरिया आपने लिया, उससे आपको अब स्पेसिफिसिटी की तरफ चलना है। एंड लाइक अ फनल, चौड़ा और फिर धीरे 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 और आप स्पेसिफाई करके एंड आप बिल्कुल उस पॉइंट पे आ जाती हैं, यस दिस इज द टॉपिक विच आई हैव टू वर्क अपॉन। ठीक है? सो इससे क्या होता है जब आप ऐसा करते हैं, फ्रॉम ब्रॉडर एरिया टू स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक से ब्रॉडर नहीं जाते हैं रिसर्च में, एरिया बड़ा है, उससे करते 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 आपने मैक्रो से माइक्रो लेवल पे आप आ जाते हैं। यू बिकम स्पेसिफिक, यू बिकम प्रिसाइज, एंड प्रिसिशन इज वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। जब हम साइंटिफिक रिसर्च की बेटा बात करते हैं तो 3 क्वेश्चंस आते हैं हमारे सामने, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। ध्यान रखिएगा, ये चीज क्या है, डिस्क्रिप्शन,
वाई, क्यों ऐसा हो रहा है, और हाउ, कैसे हो रहा है. These are the 3 inquiry questions. मैकमिलन की किताब is very good. You can always see that book. It's a very old publication, but it's a very good book on experimental psychology by मैकमिलन, and बहुत clear concepts हैं. कर्निंजर की किताब बहुत clear concepts हैं research methodology के. Because I am a student of psychology, so I'll be able to give you certain tips. कितने बच्चे हैं psychology के यहाँ पे? Good. So for statistical analysis आपकी ब्रूटा है, गैरेट है, बहुत सी हैं किताबें, लेकिन जहाँ पे आपको बेसिक चीज क्लियर हो, वो किताबें रेयर हैं, अब मिलती भी नहीं हैं, लेकिन हाँ, in some very good libraries you will get these books and you can just refresh your methodology paper through them. So आपका जब लिटरेचर का आप मंथन एक तरीके से जब करते हो रिव्यू में, मंथन भी एक वर्ड है, going through it again and again and again, churning of information, perseveration of that particular thought. मुझे पता है कि जब मैंने रिसर्च का टॉपिक चूज किया था तो मैं रात भर सोती नहीं थी, वो घूमता रहता था मेरे दिमाग में, ये होना चाहिए. अगर ये नहीं, जैसे सुपरवाइजर ने आपको टॉपिक दे दिया, आपने कहा हाँ ये तो सुपरवाइजर है. नो, सुपरवाइजर ने अगर आपको दे भी दिया टॉपिक, तो यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू डू वर्क, थिंक अबाउट इट, उसके बारे में सोचिए. इट्स वेरी गुड दैट ही हैज हेल्प यू और शी हैज हेल्प यू कि बेटा इसमें तुम काम कर सकते हो, बट वर्क आपको करना है. तो आप उस टॉपिक पे चर्निंग कीजिए, थॉट प्रोवोकिंग काम करिए, एंड ट्राई टू एनालाइज थिंग्स, ट्राई टू एक्सप्लेन टू योरसेल्फ कि ये ऐसा होगा तो ये ऐसा होगा, ये स्टडी ऐसा कह रही है, वो स्टडी कॉन्ट्रडिक्टरी कह रही है, तो मैं इसको मानूं, इसके लिए फिर मुझे ये काम करना चाहिए. तो यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ एंड यू आर गिविंग द आंसर्स एंड यू आर वर्किंग हार्ड अपॉन इट. सो दैट टॉपिक, दैट specific area should perseverate in your mind, घूमना चाहिए. This is called churning of thoughts. और वो churning of जो thoughts होते हैं, जो perseveration होता है, that will really help you and give you direction where you should go. आप लोग को समझ में आ रहा है? बहुत चुपचाप सुन रहे हैं आप लोग सब. समझ में आ रहा है कि नहीं? आई एम ट्राइंग, बिकॉज हम लोग का तो टीचर्स का भी आदत होती है समझाने की. आई कैन नॉट डिक्टेट नोट्स, आई हैव टू एक्सप्लेन यू. तो जहां तक मैंने बताया आपको समझ में आ रहा है. तो आपकी रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या काम करता है? इट स्टार्ट बिल्डिंग योर नॉलेज. हम जब पीएचडी करते हैं तो और सिलेक्शन हो गया हमारा, तो हम तो अपने आप को राजा समझते हैं कि अब तो हमारा सिलेक्शन हो गया, देखो इतने बच्चों में हमने वो टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, या हम नेट क्वालिफाई हो गए, अब तो हम राजा हैं, वो सब आता है. डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट. जब आप लिटरेचर रिव्यू करेंगी तो आपको लगेगा अरे ये तो बहुत चीजें हमको पता है. लेकिन अभी भी मैं ये नोट करेंगे हो ना, फ्रेश, बिकॉज आई वांटेड टू गिव अ लेक्चर, आई प्रिपेयर्ड. इसमें बुरी बात क्या है? आई कैन नॉट रिलाई ऑन माई मेमोरी कि हर चीज मुझे याद है. 40 years of experience, still every day if I have to give a lecture, I have to prepare for the lecture. If you are preparing, you are confident. आपको दाएं बाएं आलतू फालतू इधर उधर की बात नहीं करनी है. To the point, specific. आपने दिया और बच्चों से पूछा. I'm not teaching. You should have an impact on the student. हमने बड़ी बड़ी बातें कर ली और आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, सब ऊपर से चला गया, क्या फायदा? आप कहेंगे क्या करने आए? 40 years of experience is of no use.
इन्होंने क्या पढ़ाया होगा क्लास में? अब आप वो काम करने जाएंगे। आफ्टर ऑल यू आर डूइंग PhD, यू आर नॉट नेट क्वालिफाइड एंड यू आर डूइंग PhD टू टीच योर स्टूडेंट्स। तो यू हैव टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद द नॉलेज एग्जिस्टिंग। तो क्या करेगा लिटरेचर? जब आप मंथन करेंगे लिटरेचर का तो आपकी नॉलेज अपडेट हो जाएगी। करंट प्रीवियस में क्या हुआ और हम उसको कैसे रिलेट कर सकते हैं अपनी करंट इश्यूज से। मंथन आप प्रीवियस का ही करते हैं, जो काम हो चुका उसी का मंथन करना। लेकिन मंथन करने के बाद आपको उन चीजों को छोड़ नहीं देना है मंथन करके। आपको उसको संबंधित करना है कि वो नॉलेज हमारी एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है, हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो एरिया है, उससे किस प्रकार से संबंधित है। देन योर टास्क विल बी कंप्लीट। या कौन कौन सी गैप्स रह गए, कौन कौन सी कमियां रह गई, कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कौन कौन सी विरोधी परिणाम हैं, तभी तो समस्या कैसे खड़ी होती है। रिसर्च स्टार्ट्स विद अ प्रॉब्लम। कोई ना कोई आपको समस्या लेनी पड़ती है काम करने के लिए। समस्या क्या? क्वेश्चन। यू आर पुटिंग अ क्वेश्चन। नाउ इफ यू आर पुटिंग अ क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का तो जवाब हमको चाहिए, हमारे पास नहीं। सो अ प्रॉब्लम अराइजेस when you don't have the answers to the question, or there is gap in the existing knowledge। कि gap है, अपूर्ति है, या contradictory findings हैं। कहीं आपको लग रहा है कि नहीं contradictory है, विरोधी परिणाम है, ये ठीक नहीं है, इसको हमें देखना पड़ेगा। And then the researcher investigates according to what he has found in the literature of review। So हमारी जो भी एक्सपीरियंस है, हमारा जो भी ज्ञान है, ऐसा नहीं कि आपके पास ज्ञान नहीं है और मेरे पास ज्ञान नहीं है। हमारा पर्पस होना चाहिए जो भी हमारे पास ज्ञान है, मैडम के पास जो भी ज्ञान है, मिल करके द मेंटोर, द सुपरवाइजर, द रिसर्च स्कॉलर्स, द स्टूडेंट्स, और एक टीम होनी चाहिए। ऐसे यू कैन मेक अ टीम। जितने बच्चे हैं एक दूसरे का कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए, एक दूसरे का व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। सर्टेन थिंग्स इफ यू डोंट नो, यू कैन ऑलवेज कम फॉरवर्ड एंड आस्क एंड इंटरैक्ट। लड़के अलग बैठे, लड़कियां अलग बैठी, व्हाई आर यू डिफरेंट? यू आर अ ह्यूमन बीइंग, दे आर अ ह्यूमन बीइंग। अब अभी भी वो चल रहा रहेगा। One thing more I would like to tell you, I am a product of PPN college। मैंने यहीं से पोस्ट ग्रेजुएशन किया अपना, and I topped the university। First position with 78% marks। 1978 में मैंने MA किया इस कॉलेज से। और मुझे अभी भी मुझे नॉस्टैल्जिया हो रहा है, जब मैं इस क्लास में आई हूँ तो आई वॉज रिमेम्बरिंग डॉक्टर NK सक्सेना, डॉक्टर KD कपूर, डॉक्टर मधु सेठ, डॉक्टर प्रोफेसर चित्रे। दे वर टीचिंग मी, excuse me, you are very late, excuse me ma'am, you are very late, no, you have to come in on time, this is not the way, please। मेरे ख्याल से 45 मिनट्स हो गए क्लास को देते हुए, because I won't allow, please। and they seem to be faculty, टीचर लग रहे हैं, तो बहुत लेट आए हैं। Anyway, these are interruptions। So, यही की मैं प्रोडक्ट हूँ। मैंने ज़्यादा बहुत इंट्रोडक्शन इसलिए नहीं दिया कि ऑलरेडी डॉक्टर आभा टोल्ड यू अबाउट मी, बट दिस मच आई विल से, जैसे ये नहीं होता था हमारे टाइम में, जैसे ये अभी चली आई। नो, दिस अप्रोच विल नॉट एट ऑल हेल्प यू इन योर PhD। क्लास अगर 11:30 है तो मैं 10 मिनट पहले आ गई पढ़ाने के लिए, लेकिन अगर आप लोग लेट आएंगे आधा घंटा, तो क्या दिस शोज द एटीट्यूड टुवर्ड्स योर रिसर्च वर्क।
ये एटीट्यूड से आप काम नहीं कर पाए। पंक्चुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, अटेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट सबके लिए, एंड इट हैज बीन मैंडेटरी, कंपल्सरी है कि आपको अटेंड करना है। कभी कदार कोई इशू हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, बात अलग है, अदरवाइज अगर आज मैं अलाउ करूँगी तो फिर एक आदत सी आपकी पड़ जाएगी। तो ये भी डूज एंड डोंट्स में है, कई मैं डूज एंड डोंट्स आपको बताती जा रही हूँ, इसको दिमाग में आप रखते जाइए। अब लिटरेचर क्या काम करता है मुझे ये बताइए, लिटरेचर का, साहित्य का क्या काम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिटरेचर? थ्रू लिटरेचर हम क्या कर रहे हैं? हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, संचार का माध्यम है हम, या ब्रिजिंग द गैप के अलावा वी आर शेयरिंग आवर नॉलेज, हम लोग नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। तभी मैंने आपसे कहा कि जो ग्रुप में आप लोग ऐसे ऐसे हैं ना, इट शुड बी अ मिक्स्ड बैग। और जमाना आ गया, और मैंने इसलिए अपना उदाहरण आपको दिया कि when I was a student and I used to sit in the first bench and boys used to sit at the last bench, तो I used to tell them, डरते हो क्या, पीछे क्यों बैठे हो? There were only 4 boys with me and they used to, and I still remember their names, पीछे बिल्कुल बैठते थे, कहते थे अरे मैडम आप जो नोट करेंगी वो हमें दे दीजिएगा, हमारे लिए उतना ही काफी। And literally I tell you, हमने कहा देखो भैया हम इंग्लिश मीडियम है, हम तो इंग्लिश में नोट कर रहे हैं। अरे कहता है जिसमें भी आप नोट करिए बस हमें देती जाइए, हमारा कल्याण उसी से हो जाएगा। एंड दीज वर द बॉयज, यू नो, दे हेल्प मी टू बैग द फर्स्ट पोजीशन इन द यूनिवर्सिटी। कहीं IIT से किताब ला रहे हैं, कहीं DAV से किताब, मैडम आप पढ़ लीजिए, हम लोग तो देखिए MA करने के लिए MA कर रहे हैं, नौकरी करेंगे, आपको टीचिंग में आना है तो आप जरूर ऊपर। See, boys have very big heart, और यही कोई लड़की हो और कोई किताब उसके पास हो तो छुपा so I'm with you that way. And they really helped me, but they used to take away my notes, जितना उनको समझ में आता था वो उससे वो लोग अपना कर नहीं अलाउ करके हम जगह नहीं मैं वो देखते हाँ हाँ क्योंकि करना जरूरी ठीक है इनको लग रहा था। अटेंडेंस शीट अभी नहीं मिली आप लोगों को, ये सब लोग हाथ दीजिए ना और लोगों को भी। चेयर्स थोड़ी और हाँ मैं करवा रही हूँ। बेटा इधर आइए, क्या नाम पिंकी, इधर आओ तुम लोग, ये है तो इस पे बैठो, आ जाओ, आप दो लोग और आ जाइए, आइए। सो आप भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति करते हैं, उसको शब्दों में पिरोते हैं, फिर उनको आप धीरे से जाओ, हाँ उसका प्रिंट बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपका साहित्य अवलोकन में आता है। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आई कैन मेक आउट योर फैकल्टी बट प्लीज फ्रॉम टुमारो ट्राई टू बी करेक्ट। देयर वर नो सीट, पीछे लेट आएंगे तो आपको सीट भी नहीं मिलेगी बैठने के लिए। तो जब हम शोध संबंधित साहित्य कहते हैं, वर्ड लिख लीजिए बिकॉज इसमें कंफ्यूजन रहता है। लिटरेचर रिलेटेड टू योर रिसर्च, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शोध संबंधित साहित्य आपको कहाँ से मिलता है? पुस्तकों से मिलेगा, ज्ञान कोश से मिलेगा, पत्र पत्रिकाओं से मिलेगा, प्रकाशित एवं अप्रकाशित शोध ग्रंथ से आपको मिल सकता है। कई बार मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिश्ड होती है, कई बार मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिश्ड नहीं हो पाती, लेकिन वर्क तो हुआ ना। ये आपके विभिन्न स्रोत हैं, विभिन्न सोर्सेज हैं जहाँ से आपको कोई अभिलेख है, कोई आपका ग्रंथ है, और इनमें से आपको ढूंढ के निकालना पड़ता है, और फिर उसको निकालने के बाद आप अपना अध्ययन आगे
बढ़ा सकते हैं। हमारा पर्पस क्या है रिव्यू ऑफ लिटरेचर? वाई वी नीड टू रिव्यू लिटरेचर? क्या आवश्यकता है, क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है कि हमको समीक्षा करनी है साहित्य की? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए। एक विशिष्ट क्षेत्र में कितना the amount of work and what kind of work, ये दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट कि एक विशिष्ट क्षेत्र में स्पेसिफिक एरिया में कितना काम हुआ है और कैसा काम हुआ है, द क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ, इसके बारे में जानकारी साहित्य समीक्षा से आपको मिलती है। दैट इज वाई इट इज दिस इज द एक्चुअली उद्देश्य भी है और सिग्निफिकेंस भी है, महत्व भी है, क्योंकि हमको इससे ये जानकारी मिलती है किसने काम किया, कितना काम हुआ और वो काम कैसा है। ठीक है। दूसरी चीज, हम जब मंथन करते हैं साहित्य का एक विशिष्ट एरिया में, सबका नहीं करना, साइकोलॉजी वाले साइकोलॉजी से रिलेटेड, सोशियोलॉजी वाले सोशियोलॉजी से रिलेटेड, फिलॉसफी वाले फिलॉसफी से रिलेटेड, जो भी टॉपिक आपको सिलेक्ट करना है, जो भी ब्रॉड एरिया से आपको सब टॉपिक सिलेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, उसके बेसिस पे आपको परिकल्पनाएं बनाने में सहायता मिलेगी। इसका ये भी उद्देश्य होता है कि आपको रिसर्च की समस्या मिले, खोज लें आप कि आप क्या शोध करना चाह रहे हैं, किस विषय में आप शोध करना चाह रहे हैं, और परिकल्पना बनाने में, परिकल्पना क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस। डू यू नो व्हाट इज हाइपोथेसिस? कोई बता सकता है? परिकल्पना क्या होती है? टेंटेटिव से क्या मतलब है? जैसे मैम, अगर हमको ये देखना है कि प्रैक्टिस का क्या इफेक्ट पड़ रहा है लर्निंग पे, तो हम ये हाइपोथेसिस बनाएंगे, डायरेक्टिव बना सकते हैं, नॉन डायरेक्टिव बना सकते हैं कि प्रैक्टिस का। व्हाट डू यू मीन बाय टेंटेटिव? वर्ड इज टेंटेटिव, मतलब चेंज भी हो सकती है। मैम, समथिंग व्हिच इज नॉट परमानेंट, प्रस्तावित, प्रपोज्ड आंसर, प्रस्तावित उत्तर, टेंटेटिव आंसर टू द प्रॉब्लम। बैठ जाइए। नाउ ये बहुत हेल्प करता है। तो ये जो प्रस्तावित आप उत्तर बनाएंगे, ये साहित्य से बनता है, क्योंकि साहित्य जब अवलोकन आपने किया तो आपकी, या जैसे इन्होंने कहा प्रैक्टिस का सीखने पर प्रभाव, अब एक टेंटेटिव आंसर बना कि प्रैक्टिस विल फैसिलिटेट लर्निंग। अब प्रैक्टिस विल फैसिलिटेट लर्निंग कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिद्धांत में या कोई स्टडी में इन्होंने ये पाया कि अभ्यास का सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, तभी तो फैसिलिटेट करेगा। ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि जरूरी नहीं कि प्रैक्टिस से ही हमें लर्निंग पर प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है प्रैक्टिस के साथ ऐसे बहुत से चर हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं। तो ये एक थ्योरी के बेस पे इन्होंने ये बात कही। अब वो थ्योरी है आपकी थॉर्नडाइक की लर्निंग के सिद्धांत। पहला नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ प्रैक्टिस। सो one very important purpose of reviewing literature is to understand the theoretical frameworks
ऑफ नॉलेज, कि जो आपके थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स हैं उनको समझने के लिए, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपका रिव्यूइंग बहुत आपको हेल्प करेगा। बहुत चुपचाप आके आप बैठ गई लेकिन मेरी नज़र से बच नहीं पाएंगी। यहाँ वो औरत बैठी है जो 40 साल यही की है। तो छुप के बैठने की बेटा जरूरत नहीं है। मेरे क्लास में मेरी रिक्वेस्ट है बच्चे टाइम से आए। मेरे को एक्चुअली क्या होता है, आप जब भी आइए चुपचाप बैठ जाइए, कोई बात नहीं, उससे मेरा थॉट ब्लॉक हो जाता है, वो कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है, मुझे नहीं पसंद है। तो इफ यू रियली वांट दैट आई शुड टेक योर लेक्चर्स, जस्ट कम ऑन टाइम, मुझे और कोई दिक्कत नहीं आप लोगों से। आई एम द पर्सन, मेरी यहाँ स्टूडेंट्स भी बैठी हैं एमडी कॉलेज की, मुझे अभी दिखी है, दे विल टेल यू आई एम अ पर्सन विच बिलीव्स इन हेल्पिंग अदर्स, एंड आई डोंट ओनली बिलीव, आई हेल्प। जेन्युइनली हम अगर किसी की सहायता कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए, लेकिन गलत परंपराओं को मैं बढ़ावा नहीं देती। और ये गलत परंपरा है कि अभी 11:30 का क्लास है, आप 5 मिनट पहले बेटा रिपोर्ट करके, ये थोड़ी तरीका है कि आप चली आ रही हैं 12 बजे और 12:30 बजे, मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड मुझे मत लीजिए प्लीज। इतनी रिस्पेक्ट तो मैं अपनी करती हूँ खुद। सो बी केयरफुल। 2-3 लोग काफ़ी लेट आए हैं, कल तो क्लास आपका नहीं है, परसों है क्लास, कल नहीं परसों है। आपको बता देंगी आभा मैम, I told you the reasons. Tomorrow I will not be available. Day after tomorrow मैं आपका क्लास कंटिन्यू करूँगा। तीसरा लिख लीजिए, लिटरेचर ऑफ रिव्यू का एक और पर्पस होता है, मेथोडोलॉजी के विषय में ज्ञान प्राप्त करना, कि आप के टॉपिक से संबंधित कौन सी विधि ज्यादा उपयोगी होगी, कौन सा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आपका ज्यादा उपयोगी होगा, कि पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स का उपयोग करना है, प्राचलिक का करना है कि अप्राचलिक का करना है, कि पता लगा कि आपने रैंडमाइज्ड मेथड से सैंपल को सिलेक्ट करा है और आप लगा रहे हैं नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, गलत हो जाएगा। तो रैंक ऑर्डर आप ले रहे हैं और लगा रहे हैं आप पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, वो आपका गलत हो जाएगा। रैंक ऑर्डर है, कोरिलेशन आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप स्पीयरमैन का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर रैंडमली सिलेक्टेड है तो आप पियर्सन का कोरिलेशन फॉर्मूला लगाएंगे। एंड दिस यू आर नॉट अलोन, द सुपरवाइजर विल आल्सो हेल्प यू, बट बिफोर द सुपरवाइजर हेल्प यू, कुछ तैयारी आपके पार्ट पे भी होनी चाहिए। और ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर का जो पर्पस है, दैट विल हेल्प यू टू डिसाइड अबाउट द hypothesis, to decide about the questions you are going to raise regarding your research, and to decide about the methodology you are going to take up for your analysis. Next, analysis of results, that is very important. कि ये review of literature आपको सहायता प्रदान करता है जिस समय आप अपनी परिणामों की विवेचना और व्याख्या करते हैं, है ना। एक यूनिट है ना आपका रिजल्ट का, और फिर एक यूनिट पूरा होता है आपका एनालिसिस का। तो उसमें क्या करते हैं हम जो भी रिजल्ट्स, निष्कर्ष हमारे आए हैं, उन निष्कर्षों की हम व्याख्या करते हैं, विवेचना करते हैं। अब देखिए, उसके विवेचना और व्याख्या में भी ये आपको सहायता प्रदान करेगा। कैसे? कि जो स्टडीज इन फेवर है, हमने उनको कहा, लिखा कि देखिए ये जो मेरा वर्क है, ये मेरे रिजल्ट्स आए, ऐसे रिजल्ट्स
इस ऑथर ने जो काम किया उन्होंने भी, और आपने उसको सत्यापित किया, वेरीफाई किया, और आपने लिखा भी कि माय फाइंडिंग्स आर सिमिलर टू द फाइंडिंग्स ऑफ पर्टिकुलर रिसर्च वर्क, या माय फाइंडिंग्स आर कॉन्ट्रडिक्टरी एंड व्हाई, एंड यू हैव टू गिव अ रीजन व्हेन जब इस तरह का कॉन्ट्रडिक्शन आता है तो एक तरीके से आप अर्लियर रिसर्च को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप उसकी लिमिटेशन बता रहे हैं, तो आपको लिमिटेशंस भी पता चल जाती हैं प्रीवियस रिसर्च की कि क्या क्या। तो ये सब कब होएगा? जब आप जेन्युइनली रिव्यू ऑफ लिटरेचर खुद करें, कोई और नहीं, आपको स्वयं बैठ करके, और फिर with the help of your mentor or with your help of your mentor, can be a teacher, you know, he can be a friend of yours, or supervisor, तो of course है ही आपके साथ। So these are the purpose of literature review, and एक तरीके से आप broad way में लिख लीजिए, critical discussion main purpose है, critical discussion and summary of literature, critical discussion and summary of literature that is of general and specialized relevance. It should be general also, general to specific, relevance का होना चाहिए, महत्वपूर्ण होना चाहिए, संगत पूर्ण होना चाहिए, that is very important, relevant। और कई बार होता है लिटरेचर ऑफ रिव्यू में ऐसी बातें लिखी होती है टॉपिक से कहीं दूर दूर तक फिट ही नहीं हो रहा है, लेकिन आपको पेजेस नहीं बढ़ाने हैं। अगर आपने 10 to 20 पेजेस का रिव्यू लिखा है, रिसर्च प्रपोजल में तो इतना लंबा नहीं होता, पीएचडी जब आप थीसिस लिखते हैं तो उसमें एटलीस्ट 10 to 20 पेजेस तक रिव्यू चला जाता है, बट द क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट, नॉट द क्वांटिटी। आपने कुछ ऐसे रिव्यूज छाटे लिटरेचर साहित्य में से, तथ्य निकाले, ज्ञान निकाला जो आपकी परिकल्पनाओं को सहमति दे रहा है, कुछ सहमति नहीं दे रहा, कुछ जहां आपको गैप नजर आ रहा है। ये कैसे पता चलेगा? जब आप ज्यादा बिल्कुल भी अंडररेटेड नहीं होना चाहिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर कि बहुत ही आपने 10-12 अपना स्टडीज खोजी और आपका हो गया रिव्यू, नो, ओवर भी नहीं होना चाहिए कि आपने पूरा 6 महीने निकाल दिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर में कि मैडम ने तो कहा था बहुत अच्छे से गहन अध्ययन करो, तो मैं गहन अध्ययन करूं, तो ये आप वहीं पे अटके रहेंगे। ना ओवर होना चाहिए, ये मेमोरी का भी ये साफ होता है कि आप उतना ज्ञान ले लीजिए बस जिसको आप संभाल सकें। You should know how to manage knowledge, क्योंकि इतना वास्ट ये हम लोग का जमाना नहीं है, परोस रहे हैं लोग खुलेआम। आप गूगल में जाइए, विकिपीडिया, एवरीथिंग इज वर्चुअल। हमें उस वर्चुअल में से, क्योंकि इतना मिल गया और बड़े आसानी से मिल गया, एक क्लिक पे मिल गया आपको। हम लोग की तरह थोड़ी ना कि आईआईटी बस में दौड़े चले जा रहे हैं और आईआईटी जा रहे हैं और वहां पे एब्स्ट्रैक्ट साइको इन्फो और साइक्लिड से एब्स्ट्रैक्ट ढूंढ रहे हो, जो मतलब के एब्स्ट्रैक्ट है उनका 5 रुपए दे करके प्रिंट आउट निकलवा रहे हैं, फिर उसकी फाइलिंग करा रहे हैं और फिर घर में आकर के बैठ करके उसको री रिवाइज कर रहे हैं। आप लोग का तो बेटा जमाना नहीं है, आप लोग का तो एक क्लिक का जमाना, लेकिन इसके नुकसान भी है। नुकसान क्या है? आपको लगता है देख तो लिया, पढ़ तो लिया और रख तो लिया है, डाउनलोड तो कर लिया है, लेकिन उस डाउनलोड से फायदा नहीं होगा, कुछ तक हम पहुंचे नहीं पाए। हाँ, आपने ड्राइव पे डाल दिया, डाउनलोड कर दिया, वो डाउनलोड है, भूल गए और इतना डाउनलोड कर दिया कि आपको कह रहा आप इसकी वो बढ़ाइए कैपेसिटी, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, होता है ना ये, यू लीव इट। तो पेन और पेंसिल जैसे मैं कर रही हूँ अभी भी, इसका कमाल है। When you read and when you write, आपकी वो चीज यहाँ पे इम्प्रिंट हो जाएगी, और एक बार इम्प्रिंट हो गई तो उसको फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चली जाती है और आप उसको इजीली निकाल नहीं सकते। सो मेन पर्पस, मेन नीड ऑफ
जो रिसर्च है, नंबर 1, टू फाइंड आउट गैप्स इन रिसर्च। ज्ञान में जो आपूर्ति है उसका पता लगाना। कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें काफी अध्ययन हो चुका है, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें अभी अध्ययन बहुत कम हुआ है, नाउसी जिसमें बहुत हो चुका है, और कहीं कोई कॉन्फ्लिक्टिंग चीज है उसको पकड़िए, समझिएगा। लेकिन जो ऐसा एरिया, ट्राई टू कैच दैट एरिया जिसमें कम वर्क हुआ, रेयर पीस ऑफ वर्क जिसको कहते हैं, उसको लेना चाहिए। रेयर पीस ऑफ वर्क का मतलब है कि वो क्षेत्र अछूता रह गया, काम हुआ है लेकिन थोड़ा हुआ। ऐसे वेरिएबल्स लीजिए जिन पे लोग काम किया ही नहीं है, वो पता चल जाएगा आपको। तो हमें वो लेना है ना जिसमें ऐसा एरिया जिसमें एक्सप्लोर करने के लिए काफी चीजें आपके पास होंगी। सो नोवेल्टी, क्रिएटिविटी, आपके रिसर्च में नवीनता होनी चाहिए, आपकी रिसर्च में सृजनात्मकता दिखनी चाहिए। नॉवेल इज समथिंग अनयूजुअल, जो हो रहा है परंपरागत वो तो होता चला आ रहा है, उसको क्या करना, वो तो किया है काम बहुत। ऐसे टॉपिक जो नहीं, ऐसे अब हम लोग क्या मेंटल हेल्थ पे बहुत काम हुआ। स्पिरिचुअलिज्म एंड वेलबींग, कि क्या स्पिरिचुअलिज्म और वेलबींग में कोई संबंध है? डू इट। और स्पिरिचुअलिज्म इज नॉट रिलीजन, माइंड, क्या डिफरेंस है? अध्यात्म और धर्म एक चीज नहीं है। तो हिंदू सिख ईसाई से यहां मतलब नहीं है। Being with your spirit, being yourself, ये स्पिरिचुअलिज्म अध्यात्म हमको सिखा कि there is a positive energy inside you। उस एनर्जी, abundance of energy को हम ईश्वर का नाम दे देते हैं, हम सोल कह देते हैं, कोई भी आत्मा कह देते हैं, कोई भी आप उसको नाम दे दीजिए। फिलॉसफी के स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं। आप अपने स्वरूप में रह करके कोई भी काम अगर करते हैं वो ज्यादा अच्छा है कि आप नूतन बोरा बन करके वो काम करेंगे, वो ज्यादा अच्छा है। कॉन्फ्लिक्ट कहां से आता है? हम बनना कुछ और चाहते हैं और हम अपने को समझ नहीं पाते। What I am, what attributes I have, मेरे अंदर क्या क्या strengths हैं, मेरे अंदर क्या क्या, this is self appraisal, self critical approach, आत्म मूल्यांकन। क्या है कि आप अपने को इवैल्यूएट करिए। मैं रिसर्च करने जा रही हूँ, मेरी ये स्ट्रेंथ्स हैं, मेरी ये कमियां हैं, अपनी कमियों को मैं कैसे दूर करूं? आपने अपने को अप्रेजल, आई एम नॉट वेरी गुड एट कंप्यूटर्स, आई एम नॉट वेरी गुड एट कलेक्टिंग डेटा, तो मुझे ये आई डोंट हैव एनी कम्युनिकेशन स्किल्स, आई एम नॉट वेरी गुड एट राइटिंग स्किल्स। कुछ की वो बहुत अच्छी होंगी, कुछ की दूसरी, हर एक में कोई ना कोई अच्छी चीज है। We are not perfect. तो being yourself, लोग मुझसे कहते हैं आप इतनी खुश कैसे दिखती हैं? लगता नहीं कि you are a retired person. Why? Because I am with myself. I know who I am. I know the purpose of my life. I know the meaning of life I am living. I am not living a life for the sake of living. I know मेरा उद्देश्य क्या है जीवन का, मुझे क्या करना है, मेरे लक्ष्य क्या हैं। I am very honest and specific. मुझे ये अचीव करना है।
बहुत चीजें मैं अचीव कर चुकी, लेकिन मैं अभी थकी नहीं। Even after 65 years, I want to contribute, and that is why I am here to help you out. Lecture पे बहाना, but with the spirit of sharing knowledge with you, sharing my experience with you, sharing my expertise with you. So similarly, आपको वो काम करना है, sharing your knowledge with each other. जितना आप शेयर करेंगे relevant knowledge, आप एक दूसरे का ताकत बनेंगे। टीम वर्क करिए, आप देखिएगा उसमें आपको बहुत, और जो आपको रेलेवेंट नहीं लगती, जस्ट डोंट क्रिटिसाइज, जस्ट इग्नोर, डोंट क्रिटिसाइज। क्योंकि हो सकता है जिस व्यक्ति ने आपको वो नॉलेज शेयर की हो उसका इंटेंशन अच्छा हो, लेकिन हम तुमने तो ये विद्या ठीक है, उसने अपने हिसाब से ना आपको हेल्प आउट करने के लिए। थैंक यू। ग्रैटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड इन लाइफ। बी ग्रेटफुल, बी हैप्पी, बी होपफुल, फेथ अपने ऊपर, कॉन्फिडेंस कि यस आई हैव टेकन अप दिस टास्क एंड आई विल डू इट। दूसरा है विरोधी जो परिणाम हैं उन पे जरूर आपको ध्यान केंद्रित करना है। पर्पस है आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर। पहला है आइडेंटिफाई द गैप्स, दूसरा है आइडेंटिफाई कॉन्फ्लिक्ट्स इन प्रीवियस रिसर्च, कि जो अनुसंधान हो चुका उसमें क्या क्या कमियां, विरोधी परिणाम क्या क्या है, कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स क्या क्या है। तीसरा, इस क्षेत्र में अतिरिक्त शोध की आवश्यकता क्यों है। You have to justify the need for additional research. हम क्यों ये टॉपिक पे हम क्यों काम करना चाहते हैं। और फिर आपको जो अभी किसी लड़की ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि दिस रिव्यूइंग ऑफ लिटरेचर हेल्प्स यू टू ब्रिज द गैप, bridging the gap between you are relating the previous knowledge with the current knowledge and how it will contribute in a better way. उसका contribution क्या है जो आप काम करने जा रहे हैं। हम लोग अक्सर जब वाइवा लेने जाते हैं थीसिस का, तो हम लोग ये पूछते हैं कि इसका आउटकम क्या हुआ, अल्टीमेट आपने इसमें कंक्लूड क्या किया। पूरी थीसिस लिख ली, पूरा काम कर लिया, जवाब नहीं देता। ऐसे पीएचडी कैंडिडेट्स हैं, उनको क्या करेंगे कि बेटा आपका टॉपिक क्या, मतलब इंटरव्यू के लिए टीचर सिलेक्शन होना है कॉलेज, बेटा आपका पीएचडी की थीसिस रखी है सामने, तो मैंने कहा बेटा आपका क्या टॉपिक था, मैम मुझे याद नहीं। यहाँ तो कोई सोने जाते भी हिला के पूछ ले। It is your baby, your bird. आपने उसको नर्चर किया है, आपने उसको पानी दिया है, तो ये होता है, ऐसा होता है, कोई बात नहीं। मुझे फिर उसको कहना पड़ता है बेटा आपके सामने ही तो रखी है। देखिए अब कोई टीचर का इंटरव्यू देने आया तो हम उसको नहीं कर सकते ना, उसको हमको थोड़ा सा लिहाज रखना पड़ता है। कहते कोई बात नहीं बेटा इसमें से पढ़ के बता। अच्छा कोई बात नहीं, पढ़ लीजिए एंड देन यू कैन एक्सप्लेन। असर्टिवनेस से आपका क्या मतलब है, वेलबींग से आपका क्या मतलब है। अब ये मेन वेरिएबल्स है। जीवन शैली आपने लिया तो जीवन शैली से आपका क्या मतलब है। आई एम टेलिंग यू द वेज। वो बच्चा तभी बता पाएगा जब उसने जीवन शैली के बारे में अच्छा गहन अध्ययन किया और तब जीवन शैली को लिया और उसको मानसिक स्वास्थ्य से जोड़ा। प्रतिबल को लिया तो प्रतिबल कौन सा हम ले रहे हैं, प्रतिबल तो बहुत तरीके के हैं। अब प्रतिबल पे हम अध्ययन करना चाहते हैं, which what kind
ऑफ स्ट्रेस यू वांट टू डोमेस्टिक लेना चाहते हैं, सोशल लेना चाहते हैं, कि आप ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस पे आप काम करना चाहते हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस पे अगर आप काम करना चाहते हैं तो गो टू सम ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में भी आप बैंकिंग के लोगों के ऊपर बस ही पिन 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 करते 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 देन डिसाइड। सो यू हैव टू मेक श्योर कि जब हम रिव्यू लिटरेचर करें तो ये चीजें आपको मैं इसलिए नोट कराई हैं कि आप उस चीज पे ध्यान दें। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि फनल शेप्ड होता है, लार्जर एंड, तो वो माइक्रो टॉपिक कैसे लार्जर फील्ड से कनेक्टेड है, ये कनेक्टेडनेस आपको दिखानी चाहिए लास्ट में, कि आपने एक्सप्लेन करते 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 हमने ये टॉपिक लिया। ये टॉपिक हमने इसलिए लिया क्यों? क्योंकि ऐसा प्रतीत हुआ कि इसमें बहुत कम कार्य बहुत हुआ है और अन्य विषयों पर, लेकिन इस विषय को लेकर के बहुत कम कार्य हुआ, इसलिए इन्वेस्टिगेटर ने या रिसर्चर ने इसको अध्ययन का विषय चुना। लास्ट में यू हैव टू जस्ट राइट, ताकि आपको एक समीक्षा जो आपने की उसका नेट रिजल्ट जो आपका आता है उसको आप लास्ट में एकदम क्वेश्चन फॉर्म में यू कैन अगेन पोज अ क्वेश्चन कि दैट वाज अ क्वेरी इन द माइंड ऑफ इन्वेस्टिगेटर, और इसलिए उसने इन प्रश्नों को, अगर 4-5 है तो 4-5 है, और अगर ब्रॉडर में आप लिख रहे हैं तो वो ये कोरिलेशन देखना चाहता था कि ये वेरिएबल्स में क्या कोरिलेशन है या नहीं। इन 2 में पाया गया, इन 3 में पाया गया, तो चौथा ऐड करा, क्योंकि ये चौथा वाला कभी भी इसको लेकर के अध्ययन नहीं हुआ। इज इट क्लियर सबको? नाउ जब हमने रिव्यू कर लिया तब आप उसके सिग्निफिकेंस को समझेंगे, उसके नीड को, उसके पर्पस को, और उसके पर्पस में इन उद्देश्यों से हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया। अब हाउ सिग्निफिकेंट इट बिकम्स फॉर यू एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डू इट। नंबर 1, साहित्य का गंभीर अध्ययन करने से हमारे ज्ञान कोश में वृद्धि होती है। इट ब्रॉडन्स योर नॉलेज इन द एरिया ऑफ रिसर्च। पहला फायदा, इट ब्रॉडन्स योर नॉलेज इन द एरिया ऑफ रिसर्च। साहित्य का गंभीर गहन अध्ययन करने से अनुसंधानकर्ता या इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर के ज्ञान कोश में क्या होता है? वृद्धि होती है। It will add to your knowledge. दूसरा, in-depth understanding and profound knowledge is added. गहरा, जब आप जाते हैं किसी भी साहित्य अवलोकन को गहराई से क्या मतलब है? चिंतन से क्या मतलब है? How does it fit to the purpose in hand? No. डीप जाने का मतलब है कि जो क्वेश्चंस हम एक आंसर देते हैं उसके बाद भी क्वेश्चन बनता है, और फिर उस क्वेश्चन को उसके और मैंने फर्स्ट सेंटेंस ही बोला था रिव्यू का, क्रिटिकली अप्रेजल पर आलोचनात्मक मूल्यांकन लिख लीजिए। आप डीपर जा रहे हैं, गहन अध्ययन कर रहे हैं, सुपरफिशियली आप उसको केवल पढ़ नहीं रहे, समझिएगा। अध्ययन तो ये भी है कि मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन डीपर जाने का क्या मतलब है? योर माइंड बिकम्स एनालिटिकल, क्रिटिकल इवैल्यूएशन, यू आर गोइंग थ्रू एनालिटिकली। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, नॉट नेसेसरी कि प्रैक्टिस ही इफेक्ट करेगा, देयर कैन बी एज कैन इफेक्ट, एनवायरनमेंट कैन इफेक्ट, स्कूल एनवायरनमेंट कैन इफेक्ट, होम एनवायरनमेंट, कितनी चीजें हैं जो हमारी IQ कैन इफेक्ट।
एक लर्निंग एक चीज है, और फिर वो कैसी लर्निंग है जिसको प्रैक्टिस इफेक्ट करता है। रोट लर्निंग है कि मोटर लर्निंग है, कॉग्निटिव लर्निंग के भी बहुत से आयाम हैं, आप समझ रहे हैं। तो ये सब डायमेंशंस ऑफ वेरिएबल्स आपको कैसे पता चलते हैं? जब आप डीपर उसमें डुबो दें अपने थॉट को, तब आपको जा करके और वो चीज मिलती है। नेक्स्ट लिख लीजिए, इट प्रोवाइड्स द बैकग्राउंड ऑफ द रिसर्च। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पृष्ठभूमि शोध की तैयार करना है, क्योंकि आपकी जो ज्ञान है या नॉलेज है वो अपडेट हो जाती है। It provides a context to your theory. This is very important. Context to your theory. तो आप कह सकते हैं contextual framework आपको प्रोवाइड करता है, और किस संदर्भ में ये बात कही गई, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको संदर्भ कहां से मिलेगा? साहित्य अवलोकन से। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, अब मैं इसमें ये थोड़ा सा भटक जाऊंगी और ये रह जाएगा। थ्योरी कैसे बनती है, कोई बता सकता है? एक सिद्धांत, हिंदी इज अ वेरी गुड लैंग्वेज। सिद्धांत जो सिद्ध हो चुका है। Hypothesis is tentative answer to the problem. लेकिन जब हाइपोथेसिस हम टेस्ट करते हैं और वो सिद्ध हो जाती है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज में क्या हो जाती है? सिंथेसाइज हो जाती है। समराइज एंड सिंथेसाइज, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। सिंथेसाइज में एंटीथीसिस भी आती है सामने। जो एंटीथीसिस है दैट मींस जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है उसका क्रिटिसिज्म। एक थीसिस और एंटीथीसिस। एंटी इज यू आर क्रिटिसाइजिंग, कोई आपने कमी उसमें निकाली। एंड वन थिंग, क्रिटिसिज्म शुड ऑलवेज बी हेल्दी, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, किसी लेख का हो, किसी पाठ्य पुस्तक का हो। इट शुड बी हेल्दी। हेल्दी मीन्स कि देयर इज अ नीड टू रेक्टिफाई द इश्यूज, कि आप किसी को सुधारना चाह रहे हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आलोचना के लिए नहीं होनी चाहिए। लेग पुलिंग कर रहे हैं और मजाक बना, हेल्दी क्रिटिसिज्म। और कई बार जब आपकी थीसिस का क्रिटिसिज्म होता है और आप उसको इम्प्रूवमेंट करते हैं, उन कमियों को जब हम दूर करते हैं, तो हमारे और निखार आता है। और हम डर क्या कर बैठ गए कि लो हमने तो इतनी मेहनत करी, उन्होंने तो 10 बातें इसमें निकाल दी कमियां। वो कमियां को हमने दूर करना है, और वो जब कमियां हमारी दूर हो जाएंगी तो अपने आप हमारा जो वर्क है वो एप्रिशिएबल होगा और लोग उसको मान्यता देंगे। तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या है, हमारा रिसर्च किससे जुड़ा है, और क्या कॉन्टेक्स्ट, कोई बात किस कॉन्टेक्स्ट में। अब मान लीजिए कोई वर्क हुआ जीरियाट्रिक्स के ऊपर, बूढ़े लोगों के ऊपर। अब ये तो आपने देखा नहीं कि सैंपल क्या था, 60 to 70, और आपका काम है युवा वर्ग के ऊपर, यूथ के ऊपर आप काम कर रहे हैं। आपका सैंपल का एज फर्क होगा कि नहीं होगा? तो उनकी फाइंडिंग्स और आपकी फाइंडिंग्स कैसे मैच करेंगी? आपने सैंपल तो देखा नहीं कि क्या था, जीरियाट्रिक्स समझ में नहीं आया, और आपने कहा कि अरे ये तो बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट है। Why? Because no one, आपने डीपर जाकर के उस पूरी चीज को, तो that is not conflicting, that is not related to your work जो आपने स्टडी कोड करी, and this is the reason why you are not getting the results.
आपके निष्कर्ष अलग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो सैंपल ही अलग था, कॉन्टेक्स्ट अलग था। ये आपका कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ बिल्कुल भिन्न है। तो ये चीजें हैं। फिर नेक्स्ट लिख लीजिए, रिसर्च रिव्यू लिटरेचर का जब हम करते हैं रिसर्च में, तो आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग में हेल्प करता है। प्रश्न, रिसर्चेबल प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स यू टू फाइंड आउट द रिसर्चेबल प्रॉब्लम। वेरिएबल्स, क्या क्या चर हैं जिनको आप ले सकते हो। तो आप लिख सकते हैं टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, वेरिएबल्स विच आर रेलेवेंट टू योर रिसर्च टॉपिक। ये सब जब हम करते हैं तो क्या होगा, जो भी काम हम कर रहे हैं we are very clear about it. So clarity and focus, this is also very important. Clarity and focus भी आपको मिलती है। Your focus, attention का क्या मतलब है? Psychology student, what do you mean by attention? Processing some information. No. Selectively focusing on something. Focusing. पेरिफेरी है, अथाह ज्ञान है। एक सर्कल बनाइए, आपने देखा होगा मेडिटेशन के लिए ज्यादातर एक सर्कल होता है और बीच में ओम लिखा होता है। नाउ यू हैव टू फोकस योर अटेंशन ऑन ओम सपोज, मतलब इधर उधर से हटा करके एक जगह आपने अपने ध्यान को केंद्रित कर दिया। केंद्रित करने का क्या मतलब है? यू बिकम अवेयर, अभिज्ञा हो गई आपको, अवेयरनेस ऑफ अ पर्टिकुलर, मतलब में अटेंशन यही तो हुआ ना कि आई एम अवेयर, आपकी कॉन्शियसली यू आर अवेयर। नॉन अटेंटिव, नॉट अवेयर, कॉन्शियसली। सो कॉन्शियसली being aware or focusing on a particular thing is called attention. पेरिफेरी से ध्यान हटा करके केंद्रीकरण करना, अभिज्ञा को आपने क्या करा? पॉइंट आउट किया, केंद्रीकरण। तो ये आपका जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, ये आपको जब आप कोई भी चीज ध्यान से सुनेंगी या ध्यान से करेंगे तो अपने आप चीजें क्या हो जाएंगी? क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, क्लैरिटी आ जाएगी आपके अंदर। नो कंफ्यूजन, नो कॉन्फ्लिक्ट, यू विल बी क्लियर अबाउट योर टॉपिक। क्लियर है सबको? आई होप आई कैन एक्सप्लेन। पक्का? टाइम क्या हुआ है? अभी है। आपका 15 मिनट एक्सटेंड कर सकती हूँ कि नहीं? क्या आप लोग का बस है और ट्रेन है और जाना है, ऐसा कुछ नहीं? अच्छा, दूसरी डीजी जाना होता है। जी मैम, डीजी कॉलेज 1 बजे, 1:30 बजे। अच्छा, फिर नहीं, फिर वहाँ भी आपको टाइम से पहुँचना है। 1 बजे मैं खत्म कर दूँगी, जितना भी हो पाएगा। फिर कंटिन्यू करूँगी डे आफ्टर टुमारो 11:30। कोई दिक्कत तो नहीं है सबको? आप लोगों को मैम आई एम सॉरी, आप लोग पढ़ाते हैं कहीं ना कहीं ज़रूर, आपकी जो भी कमियां रही होंगी, बट देयर वाज नो सीट, सो आई हैड टू पॉइंट आउट। और मेरे लिए इस समय आप लोग सब स्टूडेंट्स हैं, इतना तो अधिकार आप मुझे देंगी कि आई शुड नॉट बी डिस्टर्ब, है ना? चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है जो आप लोग काफ़ी उसके बारे में बल्कि पढ़ लीजिएगा, प्लेजरिज्म के ऊपर, जो साहित्य चोरी, जो पूरा आप समझिए बहुत सालों ये चला है और यूजीसी रेगुलेशंस में अब ये मैंडेटरी हो गया कि आप कोई भी कॉपी कट पेस्ट नहीं कर सकते। तो लिटरेचर रिव्यू में एक जो बहुत
बड़ी सिग्निफिकेंट या नीड है उसकी, वो है अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। लिख लीजिए, अवॉइडिंग रेपिटेशन, पुनरावृत्ति को रोकने का एक तरीका है। एंड प्रिवेंट प्लेजरिज्म, साहित्य चोरी के प्रति ये प्रतिबंध लगाता है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ऐसा नहीं कि एक रिसर्च हुई और कई बार तो पब्लिश पूरी रिसर्च इन द बुक फॉर्म होती है, आपने थोड़ा बहुत उसमें हेरा फेरी करी और आपने पूरा उसको लॉज ऑफ तो जी ऐसा ही होता है। ऐसे अभी भी हो रहा है बेटा, अभी भी हो रहा है। नहीं, थोड़ा कम हुआ है। कम तो हुआ है हुआ तो है, लेकिन पहले तो बहुत होता तो था। खत्म भी नहीं हो सकता है। See, human mind is actually corrupt. दोषी कोई नहीं है, दोषी हम यहाँ कितना पढ़ा जाए आपको। मैं कहती हूँ इतनी होड़ है, अब देखिए प्रोफेसरशिप आ रही है, कहीं से सर्टिफिकेट ले लेंगे 2000 रुपए दे करके, ये सब ये नेगेटिव चीजें, इस पे हम लोग ना पढ़ें तो अच्छा है। हमको जो बताना हम बताएं, ये बात की डिस्कशंस हैं कभी फ्री टाइम में, क्योंकि मेरा टाइम चला जाएगा, बिकॉज देयर इज लॉट टू से एंड फील नेगेटिव, बट आई डोंट वांट। मैंने दुनिया में वही किया जो मुझे सही लगा। दुनिया क्या कहेगी मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बिकॉज मुझे पता है मेरी अंतरात्मा, इनर वॉइस गलत काम करने पे मुझे प्रिक करती है, ये गलत हो रहा है, ये मत ये, और करेगी, आपकी भी करेगी। आप थोड़ा सा इसीलिए कहते हैं ना, थोड़ा बैठिए, थोड़ा अपने को समय दीजिए, सोचिए तो अपने बारे। हम लोग पूरे टाइम दूसरे के बारे में बहुत चिंतित रहते हैं, बहुत टीकते हैं, बहुत, अरे वो करने दीजिए, आप मत करिए ना वो काम, डोंट डू इट इफ यू डोंट लाइक इट। लेकिन क्या होता है जब हमारे ऊपर पड़ती है हम भी वही करने लगते हैं। अपने को परखिए, दूसरों को छोड़ दीजिए, दूसरे क्या कर रहे हैं इससे हमें नहीं मतलब है। दूसरा जो अच्छा कर रहे हैं हम उसको अपने अंदर ले, बुराई को क्यों बुराई करके और क्रिटिसाइज करके टाइम वेस्ट करें। सो वी आर नॉट हियर टू वेस्ट एनी टाइम। नेक्स्ट लिखिए, अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड प्रिवेंट प्लेजरिज्म। साहित्य चोरी की रोकथाम के लिए बहुत अच्छा ये कदम होता है कि आप अच्छे से गहन अध्ययन करिए और इस चीज से आप अपने को बचाइए। डिस्कवरिंग रिलेशनशिप अमंग रेलेवेंट वेरिएबल्स, जो आपके संगत या जो भी आपके महत्वपूर्ण चर हैं, रेलेवेंट जो वेरिएबल्स हैं, उनके आपस में संबंध को स्थापित करने में ये सहायता करता है। डिस्कवरिंग रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स अंडर स्टडी, जो भी स्टडी में आपने वेरिएबल्स लिए उनके बीच संबंध कैसा है उसको भी अध्ययन करने में आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर सिग्निफिकेंट। कौन सी इनकंसिस्टेंसीज हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर आपने पता कर ली तो आपका अच्छा वर्क होगा। गैप्स तो है ही, एंड इनकंसिस्टेंसीज, अनियमितताएं क्या हैं, ये भी आपको रेलेवेंट लिटरेचर रिव्यू करने से पता चलेगा। क्या कमियां हैं, क्या गैप्स हैं नॉलेज में, और क्या कमी इज अगेन अनियमित, कोई चीज आपको क्लिक करेगी कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर आप वो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं तो आप पूरा आर्टिकल मंगवा करके पढ़ेंगी, ऑथर से रिक्वेस्ट करेंगी कि भाई हमको पूरा आर्टिकल आप प्लीज दीजिए, या आप ट्राई करेंगे कि वो जर्नल में वो आर्टिकल कहाँ पे हमको मिलेगा, सोर्स क्या है। तो आप पूरा जब आर्टिकल पढ़ती हैं तो वो आपको क्लैरिफाई करेगा कि ये कमी इस कारण है, और आप सुझाव भी दे सकती हैं
जो रिसर्चर है उसको आप लिख करके भी पूछ सकती हैं कि ये मुझे इसमें थोड़ा सा कमी लग रही है. इनकंसिस्टेंसी कैन बी इन द डिजाइन, इनकंसिस्टेंसी कैन बी इन द मेथोडोलॉजी, कैन बी इन द नेचर ऑफ वेरिएबल्स. तो जो भी आपको दिखती है या सुपरवाइजर आपको वो पॉइंट आउट करता है उसको आप क्लैरिफाई कर सकते हैं. उसके अपने अपने तरीके होते हैं. फिर है कि जो रैशनल आप बनाते हैं, यू हैव टू राइट कि सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रपोज्ड वर्क या रैशनल ऑफ द प्रपोज्ड वर्क, ये आपको लिखना पड़ता है. तो उसको भी लिखने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए कि आप ये अध्ययन क्यों करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज वेरी सिग्निफिकेंट. साइंटिफिक मेथोडोलॉजी को भी अपनाने के लिए सहायक होता है. इट हेल्प्स यू टू अडैप्ट साइंटिफिक मेथोडोलॉजी. अब कुछ क्वेश्चंस हैं, जब आप ध्यान से लिटरेचर को रिव्यू करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लिख लीजिए, जो आपको करने हैं जब आप रिव्यू करें. सबसे पहला, व्हाट डू द रिसर्चर नो, व्हाट यू नो. आप रिसर्चर कितना जानता है अपने विषय के बारे में. व्हाट द रिसर्चर नोज, व्हाट द रिसर्चर डज नॉट नो. आप क्या जानते हैं विषय के बारे में, आप क्या नहीं जानते हैं विषय के बारे में. What are the knowledge gaps? Gaps क्या क्या है, इनको आपको नोट करना पड़ेगा. सब चीजें क्या क्या इनकंसिस्टेंसीज हैं, विरोधी परिणाम कौन कौन से मिले आपको रिव्यू करने में, कॉन्ट्रडिक्टरी रिजल्ट्स आपको कहां कहां मिले, कौन सा एरिया अनएक्सप्लोर्ड रहा, किसमें आपको ज्यादा खोज करने की आवश्यकता है, अंडर एक्सप्लोर्ड रहा, कम जिस पे रिसर्च हुआ है. और जो कुछ भी अध्ययन आपने किया वो रिलायबल है, विश्वसनीय है, ट्रस्टवर्दी है. तो हमेशा पीयर रिव्यूड जो आपके आर्टिकल्स होते हैं, साइटेशंस होते हैं, उनको लेना चाहिए. सेकेंडरी जो आपके सोर्सेज हैं उसमें कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन होता है. प्राइमरी सोर्सेज जो हैं आपके, उन पे आपको जब मैं सोर्सेज बताऊंगी तो प्राइमरी सोर्सेज आर बेस्ट बिकॉज वो डायरेक्ट है, मूल रूप में आपके समक्ष है ना. लेकिन अगर उसी थीसिस में किसी ने कमेंट किया है, कमेंट्री दी है, तो वो उसका पर्सनल हो गया, आफ्टर द इवेंट सेकेंडरी हो जाता है. लेकिन मूल रूप में अगर आप अब्दुल कलाम जी की मूल रूप में स्पीच सुनिए और somebody is interpreting that speech, तो वो सेकेंडरी डेटा हो गया. तो प्राइमरी जो आपका सोर्स ऑफ डेटा है वो जरूर ट्रस्टवर्दी होता है बिकॉज वो ओरिजिनल वर्क है. तो ओरिजिनल वर्क को आप ट्राई करिए कि किताब है तो ओरिजिनल आपको बुक मिल जाए, टेक्स्ट बुक नहीं, ग्रंथम नहीं, इजी नोट्स नहीं. इसीलिए देखिए एग्जामिनर भी इजी हो गया. एग्जामिनर क्या कर रहा है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, आधा 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 दे रहा, क्योंकि आपने इजी नोट्स पढ़े हैं, ग्रंथम पढ़ा है, एक से आंसर चले आ रहे हैं और हम लोग भी अपना ठीक है. लेकिन जहां पे जेन्युइन लिखा है वहां पे कई बार 2 में से 2, 4 में से 4 भी देने पड़ते हैं कि इतना अच्छा लिखा है. यूनिवर्सिटी की कॉपी, एंड आई हैड टू
give 0. रिसर्च मेथडोलॉजी की कॉपी आई हैड टू गिव 0. तो कोऑर्डिनेटर ने कहा ये 0 क्यों दिया आपने मैडम, 0 तो नहीं दिया जाता है. मैंने कहा कुछ लिखा ही नहीं. तो बोले पूरी कॉपी में तो लिखा है. मैंने कहा हाँ पूरी कॉपी में लिखा है लेकिन एक सेंटेंस लिखा है. क्वेश्चन है वन टेल्ड एंड टू टेल्ड टेस्ट क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय वन टेल्ड एंड टू टेल्ड टेस्ट. 4 नंबर का क्वेश्चन है मान लीजिए और आप एक ही सेंटेंस पूरी कॉपी में बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में कोई लिख दे. एक पूछिए परीक्षण जिसमें एक पूछ होती है और 2 पूछिए परीक्षण जिसमें 2 पूछ होती है. कहीं डायरेक्शन नॉन डायरेक्शनल की बात ही नहीं है. कहीं हाइपोथेसिस की बात ही नहीं है. कहीं एग्जाम्पल की बात ही. एक ही सेंटेंस. और मुझे भी जब मैंने पढ़ा तो मैं क्या है बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में 15-20 मिनट उस बच्चे ने भरे. हर क्वेश्चन में वही लिखा. मैं थी तो पकड़ लिया मैंने और मैंने इररेलेवेंट आंसर. ये कल को कॉपी खुल जाए तो हमको भी तो पूछा जाएगा कि आपने 0 क्यों दिया. इसलिए दिया. एक पूछिए परीक्षण वन टेल टेस्ट. डायरेक्शनल टेस्ट भी लिख दो तो समझ में आता है. एक पूछ वाला कोई जानवर है क्या. स्टैटिस्टिक्स का पेपर है, रिसर्च मेथडोलॉजी का पेपर है. हमने कहा लेट द स्टूडेंट चैलेंज. लेट हिम चैलेंज. बहुत साल पहले की बात है. तो इस तरीके से आप नहीं कर सकते हैं. यू कैन नॉट डू इट. कॉन्सेप्ट्स क्लियर तभी होंगे जब आप अच्छे से उस पर अमल करें. सो आई विल कंटिन्यू. यू ऑल वांट मी टू कंटिन्यू. कल आभा मैम बताएंगी कल किसका होगा, मेरा नहीं होगा. So thank you for your patient hearing. बहुत आगे अटेंडेंस शीट